Hello dear student, it is your part 3 for 9 and 10 students polynomials. Previous chapter में हमने देखा था according to the powers, according to the degree, the naming of polynomials. But now we have to read the polynomials according to term, means naming of the polynomials according to terms. So there are flowing polynomials according to terms. Firstly हम देखेंगे मोनोमियल. मोनोमियल 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 means what is monomials? The polynomials. मोनो means आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. मोनो means one. So just one means the polynomial which the polynomial is containing only one term. Only one term is known as monomial. मीन्स टर्म में ओनली वन टर्म हो, दैट इज कॉल्ड मोनोमियल्स. एग्जांपल लेते हैं इसके. मोनोमियल्स टर्म्स किस किस टर्म को आप कह सकते हो. जैसे आप लेंगे 3x स्क्वायर 4x क्यूब ओनली 4x 7 एंड -5 डॉट etc. तो हमने क्या देखा यहाँ, कुछ वेरिएबल्स आए और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आ गए. बट इट इज known as monomials, but it is known as constant term. ये तो constant means constant polynomials. polynomial में भी ये constant polynomials है. क्यों constant polynomials होगा? because its power because the polynomials because power of this polynomial is 0. इसके पावर क्या है? 0 है. मीन्स टर्म के पावर 0 है. मीन्स 7 इंटू 7 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स पावर 0. दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7. तो पावर इसके 0 हो गए. इसलिए क्या हो गया, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल. बट वन टर्म है, सो इट इज नॉन एज मोनोमियल. जस्ट हम इसमें देखेंगे नंबर 2 में binomial. What is binomial? Binomials means the polynomial is containing two non-zero terms is called binomial. मीन्स जिसमें दो टर्म हो, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल्स. एग्जाम्पल से ले सकते हैं आप इसके. जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5, दैट इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज वेरिएबल टर्म. देयर आर टू टर्म्स, सो दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. 5x प्लस 5 3x plus 5. Next 5x square minus 6, just 3x root 3x plus 5, root 3x plus root 3, that is root 3x plus root 3 dot etc. It has two terms, so it is known as binomial. अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें means containing which has three terms, that is trinomial. नेक्स्ट देखेंगे ट्राइनोमियल.
the polynomial is containing three terms. The polynomial is containing three terms is known as trinomial. Is known as trinomials. Example, trinomial. Example, जैसे जिसमें थ्री टर्म, 3x³ प्लस 5x² प्लस 5, नेक्स्ट √3x² प्लस 4x माइनस 6, नेक्स्ट 3c² माइनस 5c प्लस 6 डॉट डॉट etc. इस तरह से आप कर सकते हो. दैट इज ट्राइनोमियल मीन्स द polynomials which has three terms, that is called trinomials. नेक्स्ट वीडियो देखेंगे पार्ट 4, जिसमें आप zeros of polynomials and coefficient of polynomials, what is the coefficient and zeros, इसको कवर करेंगे. Next topic, that is coefficient of term. What is the coefficient? You know that coefficient को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. The multiple of each variable, the multiple of each variable of each term is called its coefficient. मीन्स जो भी टर्म यहाँ पर है उस टर्म के जो मल्टीपल आएंगे. एग्जांपल देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स और उसके मल्टीपल्स. 5x² plus 3x plus 5 means here is the three terms, that is 5x², 3x and 5. means variables, there are two terms are variable और इसके दो टर्म्स ही वेरिएबल है. यहाँ पर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ, यदि आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x means x यहाँ पर क्या है, x multiply 3, that is 3x, that is 3 means coefficient of x is 3. next यदि coefficient of x² पूछ दे, that is क्या, 5 into x², 5x², that is x, that is 5 means coefficient of x² is 5 and coefficient of x is 3. but 5 is the constant term. ये कांस्टेंट टर्म है, इसके कोई मल्टीपल्स, इसके कोई भी यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है. ये खुद एक कांस्टेंट टर्म है एंड कोफिशिएंट ओनली वेरिएबल्स टर्म्स के होते हैं. इस तरह से हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ द टर्म. नेक्स्ट देखेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स. जीरो, नेक्स्ट टॉपिक इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स. मीन्स जीरो मीन्स जिसको आप रूट्स भी कहते हैं, मीन्स सॉल्यूशन. जीरोज रूट्स सॉल्यूशन, दैट इज सेम. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज क्या होता है, मीन्स द वैल्यूज ऑफ ए रियल नंबर that satisfy the polynomial is called its zero. Means the value of a real number
that satisfy the polynomials is called zeros if px equal to 3x square माइनस कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हमने एक px इक्वल टू कोई एक पॉलिनोमियल से लिया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 if any values of suppose that alpha that is equal to 0 means कोई वैल्यू x का वो वैल्यू जो यहाँ पर पुट करने पर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए means that is satisfied, so this alpha value is called its zeros। इसके जीरोज होते हैं, इसको चेक करते हैं। हमने कोई नंबर लेते हैं, इफ हम देखते हैं कोई नंबर लेके कुछ ऐसे नंबर जिसके कारण इसका वैल्यू क्या हो जाए 0। इफ हम कुछ पुट करते हैं, इफ p माइनस 1 लेते हैं, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, दैट इज 1 स्क्वायर कंप्लीट 1 and plus 2 minus 3 means 3 minus 3 equal to 0 means p क्या वैल्यू -1 पुट करने पर वैल्यू क्या हुआ पॉलिनोमियल्स के 0 आएगा। नेक्स्ट इसके हम अदर भी वैल्यूज ले आ सकते हैं, मींस p इक्वल टू अदरवाइज 3 पुट करते हैं, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x है 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मींस 3 स्क्वायर 9 minus 6 minus 3 that is 9 minus 9 equal to 0। here the two values of alpha means कोई जो वैल्यू यहाँ पर अल्फा के पुट किए, जो x का वैल्यू हमने पुट किया वो जो px आया means x के वैल्यू -1 and 3 ये वैल्यू क्या आ रहे हैं, ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 के इक्वल ला रहे हैं। सो -1 here p minus 1 and p3 is satisfied and p3 are satisfy the polynomials so that -1 and 3 are its 0। इस तरह से हम जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसमें अदरवाइज कोई भी नंबर जिसके वैल्यू यदि इसके 0 के इक्वल आ जाए तो दैट इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई होप दैट क्लास 9 स्टूडेंट यू मे सॉल्व योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स इजी वे में, जहां तक सॉल्व हो सके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें नेक्स्ट देखेंगे, बट क्लास 10 के लिए अब इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड इट्स रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।